Hello, good morning, students. I am Surekha Verma, the educator of the Redin International School. How are you, students? I think you all are fine at home. Yes, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, students? अच्छी चल रही है ना? Okay, so just tell me, students, which lesson we studied last lecture? Yes, very good. Lesson number 16. It was a poem. A Walk with My Dog. It was very interesting poem, students. Just I will revise it in short. In that poem, the poet, he was very happy with his dog, and always he was walking with his dear pet. Okay, and his name was Jack. Always he was walking with his dog, Jack. And when he was walking, at that time he was meeting with other persons. He meet with others. He solved the others' problem. Okay, जब भी हमें बाहर जाते हैं तो अगर हमें किसी का प्रॉब्लम दिखता है स्टूडेंट्स, तो हमें उनके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. अगर हमें कोई प्रॉब्लम में दिखता है तो हमें वहाँ पे ऐसे ही नहीं चलना चाहिए. Here in this poem, the same thing was happened. Poet helped to each and everybody on the street when he was walking along with his dog. Okay, understood, students? Very good. Now today, students, we will study about English grammar. Lesson number 16. Can, cannot, should not. So students, here I will explain you how can you use this can, cannot, should not. It's very interesting, students. This is the sentences we have to make by ourselves also. हम अपने आप से भी कुछ sentences इसमें बना सकते हैं. Okay, if you understood very well, अगर आपको समझ में आएगा तो. So everyone listen carefully and just try to make other sentences also. आप अपने आप से भी कुछ sentence बनाइए. Okay, first students, I will explain you how can we use can, cannot and should not. It's very easy, students. See now here. Read the sentences. I can drive. Here can. Can मतलब मैं कर सकता हूँ. I can drive मतलब मैं गाड़ी चला सकता हूँ. ओके, जब हम कुछ काम को कर सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कैन. इसलिए आप लोग लिख सकते हो ना, आप लोग पढ़ सकते हो, तो व्हाट कैन यू से? आई कैन राइट, आई कैन रीड. जस्ट लाइक यू स्मॉल सेंटेंसेस यू कैन प्रिपेयर स्टूडेंट्स. तो छोटे छोटे से सेंटेंस आपको बनाने हैं. ओके, नॉट टुडे एवरीवन, जस्ट मेक 5 सेंटेंस बाय योरसेल्फ. अपने आप से बनाइए आप लोग, देखो आपको बहुत मज़ा आएगा. ओके, so now here see in the second sentence, I cannot swim. मैं तैर नहीं सकता. अभी every person can swim? No, it is not possible for each and everybody. Only some few persons are swimming. कोई तैर सकता है, कोई नहीं तैर सकता है. It is depend on our own choice. Nobody can perfect. Okay, nobody can do everything. सभी हर एक कार्य को नहीं कर सकते हैं. Okay, so now here from the above examples we can understand that can is used when we are able to perform a task. जब हम किसी कार्य को करने के लिए कैसे होते हैं? एबल होते हैं, मतलब हम योग्य होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? कैन. आई कैन ड्राइव. जिस वक्त when we are able to perform a task, and while cannot, जब हम cannot कब यूज़ करते हैं? while cannot is used when we are unable to do something. जब हम कुछ करने के लिए योग्य नहीं होते हैं. जैसे दिस एग्जाम्पल इज आई कैन नॉट स्विम. मैं तैर नहीं सकता हूँ. अभी हर एक पर्सन तैर नहीं सकता है. ओके, हर एक पर्सन ड्राइविंग नहीं कर सकता है. सो हियर द एग्जाम्पल इज आई कैन नॉट स्विम. स्टूडेंट्स, हियर द अपोजिट वर्ड, सी द अपोजिट वर्ड्स. एबल का अपोजिट क्या होता है? अनेबल. ऐसे आप छोटे छोटे से सेंटेंस स्पेलिंग्स देखते जाइए. अपोजिट वर्ड मीनिंग. ओके, हियर एबल अपोजिट अनेबल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज
Okay, now I will explain you some sentences. See now here. Jim can right now. Jim क्या कर सकता है? Okay, wait 2 minutes. See, first sentence is in the textbook. Sana dash jump really well. Okay, so here Sana can jump really well. Wait 2 minutes. Okay, Jim cannot walk right now. जिम क्या करता है? जिम अभी वो चल नहीं सक रहा है. अपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा. ओपन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स. ओपन योर टेक्स्ट बुक. Okay, now open your textbook and just see in the textbook also. Page number 64. See, page number 64. Open your textbook everyone. Then you can understand very well. जिम को क्या हो गया? उसके पाँव में कुछ उसको लग गया है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है. तो what can be used here? जिम cannot walk right now. जिम अभी चल नहीं सकता है. Now see the plants. Okay, the plants. See the plants. Plant cannot live without water. It needs more water. ना? So what can be used here? Plants cannot live without water. Okay. Now here Ravi dash comb his hair. आप देख लो टेक्स्ट बुक में. Ravi dash comb his hair. अब यहाँ पे रवि क्या कर रहा है? अच्छे से खुशी खुशी से अपने हेयर्स को कोम्बिंग कर रहा है. मीन्स ही कैन कोम हिज हेयर्स. हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे फिर? कैन. रवि कैन कोम हिज हेयर्स. ओके. नाउ स्टूडेंट्स हियर सी अनदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे क्या पूछा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके. नाउ हियर कैन अ हॉर्स फ्लाई. तो आपको व्हाट कैन यू राइट द आंसर? विच आंसर यू कैन गिव? कैन गिव द आंसर? नो, इट कैन नॉट. हॉर्स फ्लाई कर सकता है क्या? नहीं. तो हम हॉर्स के लिए हमने क्या यूज़ किया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वी यूज़ इट फॉर हॉर्स. ओके. नो, इट कैन नॉट. नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन अ बर्ड स्विम. बर्ड स्विम कर सकते हैं क्या? नो, इट. बर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया है? इट. और कैन नॉट. नो, इट, नो, कॉमा देन इट. इट हमने किस लिए यूज़ किया है? बर्ड के लिए. नो, इट कैन नॉट. देन सेकेंड सेंटेंस इज कैन अ लायन बार. लायन भौंक सकते हैं क्या डॉग की तरह से? नहीं, वो तो क्या करते हैं? रोरिंग करते हैं. सो व्हाट कैन बी राइट? नो, इट कैन नॉट. वो डॉग की तरह से भौंकते नहीं हैं. सो व्हाट कैन बी राइट हियर? नो, इट कैन नॉट. कैन प्लांट्स टॉक. प्लांट्स बातें कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पे क्या बोला है? प्लांट्स, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स है, प्लूरल है. जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल है. तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? दे यूज़ किया है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. ओके. प्लांट्स के लिए हमने क्या यूज़ किया है? दे, क्योंकि ये प्लांट्स बोला है, प्लूरल बोला है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है? वी यूज़ हियर दे. नो, दे कैन नॉट. वो बात नहीं कर सकते. कैन ह्यूमन्स क्राई. ह्यूमन रो सकते हैं क्या? रो सकते हैं ह्यूमन्स? आप लोग रो सकते हो क्या? यस ना? यस. ह्यूमन्स मतलब इंसान. इंसान रो सकते हैं क्या? यस. ह्यूमन्स के लिए हमने क्या यूज़ किया है? दे. यस, दे कैन. कैन एलिफेंट्स जंप. एलिफेंट जब भी जंप करता है क्या? तो एलिफेंट्स बोला है, एलिफेंट नहीं बोला. एक एलिफेंट नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? एलिफेंट्स. एस यूज़ किया है, मतलब बहुत सारे एलिफेंट्स बोला है. प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लूरल है मतलब बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे? सब्जेक्ट दे. कि नो, दे कैन नॉट. नहीं, वो वैसा नहीं कर सकते हैं. कैन वाटर फ्लो. मतलब पानी बह सकता है क्या? कैन. अभी वाटर मतलब वो प्लूरल सिंगुलर एक ही होता है, वाटर्स नहीं बोलते हैं. कैन वाटर फ्लो. यस, इट कैन. इट हमने किस लिए यूज़ किया है? वाटर के लिए यूज़ किया है. ओके. सो यस,
इट कैन मतलब वो बह सकता है। कैन अ बॉय डांस, बॉय डांस कर सकते हैं कि ये सभी बॉय डांस कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही है बॉय, अ बॉय बोला है मतलब एक बॉय है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यस, ही कैन। अगर बॉयज़ होता तो हम क्या यूज़ करते स्टूडेंट्स? विच सब्जेक्ट वी यूज़ है प्रोनाउन? वी यूज़ कैन बॉयज़ डांस, तो यस दे कैन। अगर बॉयज़ होता तो हम क्या यूज़ करते? दे, मतलब वो लोग, वो बच्चे, बॉयज़, दे कैन। ओके, सो नाउ व्हाट कैन वी डू? राइट 4 sentences ऑन दिस। ओके, आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आपको क्या करना है? 4 sentences लिखना है। आप ऐसे ही sentences लिखोगे तो भी चलेगा, या इफ़ यू कैन राइट बाय योर सेल्फ, अगर आप अपने आप से भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। ओके, नाउ आई विल रीड दी सेंटेंसेस। आई कैन हैव अ बाथ ऑन माई ओन, मैं अपने आप से नहा सकता हूँ। आई कैन राइट मोर नीट एंड टाइडी, मैं नीट एंड टाइडी लिख सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स कैन यू कैन नॉट डू? राइट 4 सेंटेंस, आप क्या नहीं कर सकते हो? आई कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट कुक, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, आई कैन नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। ओके, दिस इज द वर्ड्स ऑफ दिस इज थिंग्स वी कैन नॉट डू, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। नाउ हियर स्टूडेंट्स, शुड और शुड नॉट, हम शुड और शुड नॉट कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? ओके, वी शुड ब्रश अवर टीथ एवरी डे, हमें करना ही चाहिए, मस्ट, हमें करना ही चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ, हमें अपने टीथ ब्रश करना ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? शुड। ओके, हम क्या यूज़ करते हैं? शुड। देन आई शुड नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, मैं उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। बिल्कुल भी मतलब थोड़ा विश्वास हो तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? यूज़ शुड नॉट। वी आई शुड नॉट ट्रस्ट एनी मोर। From the above sentence examples, we can understand that the highlighted verbs are used to speak about something that ought or ought not to be done. जो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। Okay, now here sentences, students, I will explain you. In the following sentence, fill in the blanks with should or should not. Okay, so I will give you the PDF, just I will explain only 2-3 sentences here students. Okay, not all sentences. Then first of all you have to just you can should write by yourself, पहले आप अपने आप से सेंटेंस लिखिए, एक्सरसाइज पूरी। ओके, व्हेन आई विल सेंड टू द PDF देन ओनली चेक इट, हाउ कैन यू अंडरस्टूड, आपको कितना समझ में आया था, ये आप चेक करिए। ओके, फर्स्ट राइट डाउन बाय योरसेल्फ, आप अपने आप से भी पहले एक्सरसाइज सॉल्व करके देखिए आपको कितना आता है। नाउ सी, वी डैश क्राउड अराउंड द पेशेंट, हमें पेशेंट के पास में क्राउड करना चाहिए क्या? वी शुड क्राउड अराउंड द पेशेंट, हमें पेशेंट के पास क्राउड करना ही चाहिए ऐसा हम कहेंगे क्या? नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? वी शुड नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट, हमें पेशेंट के पास में क्राउड मतलब बहुत गर्दी नहीं करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। ओके, जहाँ पे करना ही नहीं होता है वहाँ पे हम शुड नॉट यूज़ करते हैं। ओके, ऐसे वन शुड नॉट बिलीव इन लायर्स, हमें झूठों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नाउ सी हियर, नवीन डैश मीट मी बिफोर ही लीव्स, नवीन डैश मीट मी बिफोर ही लीव्स, मतलब वो छोड़ने से पहले, जाने से पहले मुझे मिलेगा ही। नवीन शुड मीट मतलब वो मिलेगा ही मुझे। So here we use meet, should. Okay, understand students? Just write down by your own. Another one. Now next sentences is now next exercise we can see here. Rewrite the following sentences by changing their forms from positive to negative and vice versa. One has been done for you. Okay, देखिए अभी यहाँ पे क्या है? कैन है तो आपको कैन नॉट यूज़ करना है सेंटेंस में। ओके, शुड है तो आपको शुड नॉट यूज़ करना है, कैन नॉट है तो आपको कैन यूज़ करना है।
So students just changing their forms from positive to negative and negative to positive. अब हम इसे कैसे करेंगे? देखिए, it is very easy students, but everyone just listen carefully. For how can I explain you here? See now everyone, you should not leave without telling your host. You should not leave, आप जा नहीं सकते without telling your host, आपके होस्ट को बताए बगैर आप जा ही नहीं सकते. So how can we use here? See, in exam in textbook, we should leave without telling your host. आप अपने होस्ट को बता के जा सकते हो. You should leave. Okay. Now see in the B, sentence B. The fish can swim. Fish तैर सकती है. Now how can we use here students? अब यहाँ पे क्या बोला है? The fish can swim. अब यहाँ पे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है बेटा सेंटेंस, तो हाउ कैन वी यूज हियर? सी, द फिश कैन स्विम बोला है, तो हाउ कैन वी यूज हियर? द फिश कैन नॉट. कैन के जगह आपको क्या लिखना है? कैन नॉट. यहाँ पे कैन है, ओके, पॉजिटिव है, तो आपका इसका निगेटिव बनाना है, नॉट यूज करना है सिर्फ. तो हाउ कैन यू राइट हियर? द फिश कैन नॉट स्विम. ओके. आशा कैन नॉट मेक ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. मतलब यहाँ पे क्या बोला? आशा कैन नॉट मेक, आशा नहीं बना सकती है. ओके. आशा कैन नॉट मेक ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. सबके लिए वो ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती है. अब यहाँ पे क्या बोला? कैन नॉट. सो व्हाट कैन यू यूज हियर स्टूडेंट्स? आशा कैन मेक. ओके. आशा कैन मेक ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. आशा सबके लिए ब्रेकफास्ट बना सकती है. ओके. नेक्स्ट इज आई कैन क्लाइम. अभी यहाँ पे क्या बोला है? कैन बोला है. ओके. आई कैन क्लाइम. यहाँ पे कैन है, मतलब कर सकता है. क्लाइम मतलब चढ़ सकता है. दैट माउंटेन, उस माउंटेन पे वो चढ़ सकता है. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? आई कैन नॉट. मैं नहीं चढ़ सकता. आई कैन नॉट क्लाइम दैट माउंटेन. मैं उस माउंटेन पे नहीं चढ़ सकता. तो स्टूडेंट्स व्हाट कैन यू मेक द सेंटेंसेस? जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे आपको निगेटिव करना है. ओके. जैसे यहाँ पे क्या है? शुड है, तो शुड क्या है? पॉजिटिव है, तो आपको निगेटिव क्या करना है? शुड नॉट करना है. ओके. मदर कैन नॉट मेक मी अ स्कूल टुडे. मदर कैन नॉट टेक मी टू स्कूल टुडे. यहाँ पे क्या है? कैन नॉट है, मतलब निगेटिव है, तो आपको यहाँ का क्या करना है? मदर कैन टेक मी स्कूल टुडे. ओके. जहाँ पे कैन नॉट है वहाँ पे कैन यूज़ करना है, जहाँ शुड नॉट है वहाँ पे शुड यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेनिंग सेंटेंसेस यू शुड मेक बाय yourself. Okay. Understood everyone? Give me the answer everyone. Understood it? I think you understood very well because you all are very good students. So students, today we will study about short forms. Lesson number 17, short forms. You know students, what is the short forms? It is very easy. This lesson is very easy. जैसे हम कहते हैं ना, आई एम गोइंग, सो आई पूरा हम IAM नहीं लिखते हैं. दिस आई विल एक्सप्लेन यू हियर स्टूडेंट्स. सी नाउ, लुक एट द फॉलोइंग टेबल. द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ इज कैन बी सीन बिलो. अब यहाँ पे क्या है? वर्ड्स है. ओके. सी नाउ हियर, ही इज. ठीक है, ही इज. तो हम कैसे लिखते हैं? अगर 2 वर्ड्स है यहाँ पे, ओके, ही तो पूरा हम लिखेंगे ही. फर्स्ट जो वर्ड है वो हम पूरा ही लिखेंगे, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस वर्ड रहता है वो सेकंड सेंटेंस में का हम पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं. ओके. अगर 2 वर्ड है तो उसमें से हम क्या करते हैं? एक वर्ड को निकाल देते हैं. जैसे आई के साथ में इज है तो हम क्या करेंगे? आई के साथ में जो इज है तो हम क्या करेंगे? आई को निकाल देंगे यहाँ से. ओके. और क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ ही अपॉस्ट्रॉफ. इसको क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रॉफ. ओके. इसी को हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन. दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स. ओके. जैसे डू है, ओके, डू नॉट, तो हम क्या यूज़ करते हैं? डोंट इज अ कंट्रैक्शंस. इसको क्या कहते हैं? कंट्रैक्शंस. ऐसे ही इज, she is, it is called contractions. Notice that
वी हैव पुट एन अपॉस्ट्रॉफ, इसे क्या कहते हैं अपॉस्ट्रॉफ। ये जो हमने यहाँ पे दे के बाद में लगाया है इसको क्या कहते हैं अपॉस्ट्रॉफ वर्ड, अपॉस्ट्रॉफ, इट इज कॉल्ड अपॉस्ट्रॉफी, ओके अपॉस्ट्रॉफी ऑन द टॉप आफ्टर एनी वर्ड, कोई भी वर्ड के बाद में हम जो ऊपर लगाते हैं इसे क्या कहते हैं अपॉस्ट्रॉफ, ओके यूज्ड इन प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी वर्ड करते हैं यूज़। ऑफन वी ऑल्सो राइट जस्ट लाइक शी इज़, यहाँ पे है आपने देखा है शी इज़, ही इज़, इंस्टेड ऑफ आई एस वी आर यूजिंग ओनली अपॉस्ट्रॉफी देन ओनली एस, ओके नाउ हियर सी they are, here are, A-R-E-R, but here three words are here, so only we are using R-E, they are, apostrophe, then they R-E, लास्ट के टू वर्ड्स होते हैं वही यूज़ होता है, ओके हमेशा अगर टू वर्ड्स है तो सिर्फ लास्ट का ही वर्ड होगा यूज़, जैसे शी इज़ है तो आई निकल के वी आर यूजिंग ओनली एस ही इज़, और टू लेटर्स है दे आर, थ्री लेटर्स है यहाँ पे, ओके दे आर, तो आपको दे तो पूरा ही लिखना है, दे में से आपको कुछ भी कट नहीं करना है, ओके आपको दे वैसा ही लिखना है, ओके ओनली यू हैव टू कट ओनली फर्स्ट वर्ड, ओके फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट टू वर्ड्स यू हैव टू यूज़। हमने देखा यहाँ पे लास्ट टू वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, ओनली वी हैव टू कट ओनली फर्स्ट वर्ड आर ई, वी आर राइटिंग देन आर ई, वी आर, देन वी इज द सेम, वी हम सेम लिखेंगे बट हियर आर ए आर ई आर, देन कट ओनली फर्स्ट वर्ड, ओके देन द सेम आर ई वी हैव टू राइट हियर मीन्स वी आर, इट इज कॉल्ड द शॉर्ट फॉर्म्स। Understood everyone students? Then the short form of not is as seen below. अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट हम नॉट किस तरह से यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके सो हाउ कैन वी यूज़, जैसे द वर्ड इज हमने भी देखा है कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, ओके सो हाउ कैन वी यूज़ हियर इज द कैन नॉट, ओके कैन नॉट इज हियर, कैन नॉट वी राइट फर्स्ट थ्री लेटर्स कैन तो हमको पहले लिखना ही है, अब हमको नॉट के कितने वर्ड्स है 1 2 3 लेटर्स आर देयर, सो हियर वी हैव टू राइट नॉट के अंदर में हमें सिर्फ टी ही लिखना है, सिर्फ जो टी है वही लिखना है, बाकी एन ओ जो है वो आपको रिमूव करना है, ओके हर एक में से आपको एन, ओके अभी जैसे यहाँ पे could not है, okay can not, okay here see क्योंकि here is two n is there, okay double n is there, so we have to use only one n, okay can apostrophe t means can't, cannot क्या होगा शॉर्ट फॉर्म can't, could not। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे थ्री लेटर्स, यहाँ पे डबल एन है इसलिए हमने ए वन टाइम ही सिर्फ वन डी लिया एन लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कुड नॉट, तो आपको कुड तो लेना ही है पूरा, ओके कुड वी हैव टू यूज़, कुड हमको पूरा ही लेना है, ओके सेम कुड हमको लेना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है एन ओ टी, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स एन जो है अपॉस्ट्रोफ पहले एन यूज़ करना है, कुडंट मीन्स could n apostrophe then t means couldn't, do not, okay do तो हमको पूरा ही लिखना है, first you have to write do whole do, then write down only n apostrophe then t means remove only here n o t में हमको क्या यूज़ कर रिमूव करना है o, ओके स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ओ रिमूव करना ही है, जब नॉट है सिर्फ कैन नॉट में ही आप सिर्फ CAN अपॉस्ट्रोफ टी करना है आपको, ओके कैन कांट, देन डू नॉट, सो हाउ कैन यू यूज डू नॉट, डोंट, डू एन
apostrophe, then T. Do not. Okay, then did not. D-I-D, did. N, then apostrophe, then T. Okay, did आपको लिखना है, did करना है आपको, then apostrophe N, then apostrophe T. apostrophe करके आपको T लिखना है. Then should not. should, shouldn't. How can we write? should तो आपको पूरा ही लिखना है. Then N लिख के आपको apostrophe करके T लिखना है. Okay, means shouldn't. will not. लेकिन हाँ students, here also you can change. will not. willn't नहीं बोलते हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, WONT. ओके, ओंट यूज़ करते हैं हम यहाँ पे. हम क्या करते हैं, ओन शॉर्ट फॉर्म. इसका पूरी तरह से ही चेंज हो जाता है, विल नॉट, ओंट. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, now I will explain you some examples here. Okay, exercise. Write constructions for the following sentences. This one is done for you here. एक पहले से करके दिखाया हुआ है आपको. ओके, हैव नॉट, तो आप क्या यूज़ करोगे, HAVEN. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एन के बाद में ओ को यहाँ पे कट करना ही है. ओके, एन के बाद अपॉस्ट्रोफी, दिस अपॉस्ट्रोफी मार्क, देन टी मीन्स हैवंट. दे आर मीन्स दे तो आपको पूरा ही लिखना है. ओके, यू शुड राइट दे. देन आर ई. ओके, दे आर. आपको यहाँ पे एक कट करना है, रिमूव ए एंड यू हैव टू राइट ओनली दे आर. RER लिखना है सिर्फ. देन इट इज, इट्स, हम क्या कहते हैं, इट्स अ गुड आइडिया. सो हाउ कैन वी राइट इट्स, IT. तो आपको पूरा ही लिखना है, हर एक वर्ड पहला आपको पूरा ही लिखना है. और अगर सिर्फ 2 वर्ड है, से इज है, इज में से आपको क्या रिमूव करना है स्टूडेंट्स, ओनली I. Then apostrophe, then S means it's. You are, first word we have to write properly you. Then सिर्फ इसमें से आपको A रिमूव करना है, A की जगह आपको क्या करना है, apostrophe mark. ओके, would not, WOULD, would, आपको would पूरा ही लिखना है, would. तो यहाँ पे आपको क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमूव ओनली O. ओके, wouldn't. I will, I आपको वैसे ही लिखोगे आप. ओके, I remove, then write down LL, I will. should not, should तो आपको पूरा ही लिखना है, write down should. ओके, then N remove, then first N, then apostrophe, then T, apostrophe mark. Here did not, first write down did. O remove, first write down N, and after apostrophe mark, then T. Okay students, understood everyone? Okay, now next I will explain you. Write the following sentences using the short forms of is, are and not. One has been done for you here. Do not talk, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, डू नॉट बोला है तो डू तो हम पूरा ही लिखते हैं, है ना. यहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, क्या रिमूव करते हैं, डू एंड ओ सिर्फ रिमूव करना है आपको, है ना. This I will not explain all the sentences students. Okay, this I will explain only one or two sentences. I do not talk. Here do, hold right down properly, then N, then apostrophe mark इंस्टेड ऑफ ओ. ओ के जगह हमने क्या यूज किया है, इन अपॉस्ट्रोफी मार्क. देन टी मीन्स डोंट टॉक. शी इज अ स्मार्ट गर्ल बट शी कैन नॉट कुक. शी इज, अभी यहाँ पे हमने शी तो हमको लिखना ही है. ओके, शी इज. और आई के जगह हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी मार्क, शी इज. ये हो गया, शी इज अ स्मार्ट. मतलब फुल फॉर्म की जगह हमें क्या यूज करना है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज करना है.